آئیے اپنے دھیان خدا کی طرف لگائیں، آئیے اپنے دھیان خدا کی طرف لگائیں کہ خداوند میں اپنا وقت گزارنے نہیں آیا، تجھے جلال دینے آیا ہوں۔ میں کوئی رسم پوری کرنے نہیں آج آیا تیرے گھر میں تیرا کلام سیکھنے آیا ہوں۔ میں وقت پورا کرنے نہیں آیا، تجھ سے مانگنے نہیں آیا، تجھے جلال دینے آیا ہوں۔ دنیا کی قومیں جب اپنے اپنے خداؤں کے پاس جاتی ہیں، مصاحف کے لوگ خداؤں کے پاس جاتے ہیں، وہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم تجھے جلال دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب تجھے جلال دیتے ہیں تو سب کچھ خود ہی ہمیں دے دیتا ہے۔ تو ہم سے پیار کرتا ہے، جب ہم تجھے جلال دیتے ہیں تو خداوند پاک خدا تو خود ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، تو ہمیں شفا بھی دیتا ہے، تو کلام کی قدرت سے بھی بھرتا ہے، تو پاک روح سے رہنمائی بھی کرتا ہے جب ہم تجھے جلال دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم تجھے جلال دینے آئے ہیں۔ ہماری عبادت کو قبول کرنا یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین، پریز دی لارڈ، آمین، ہیلیلویا۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب میرے ساتھ مل کر نکالیں اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت آئے۔ یہ ایک عمومی نصیحت ہے جو ہم اپنے مسیح ایمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ مسیحی ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور پالوس رسول یہاں کوئی حکم نہیں دے رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ التماس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جب پالوس رسول نے افسس کے نام کلیسیا کو خط لکھا تو اس وقت پالوس رسول قید میں تھے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کچھ لوگ اچھی جگہ پر بھی بیٹھ کر، بہت خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر اچھا نہیں سوچتے، اور پالوس رسول جو خدا کا بندہ ہے، جس کی نظر عالم بالا کی چیزوں پر لگی ہوئی ہے، جو مسیح سے پیار کرتا ہے، جو مسیح کی محبت سے سرشار ہے، جو یہ کہتا ہے اب مجھے مسیح کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ نہ تنگی، نہ کال، نہ مصیبتیں، نہ تلوار، نہ ننگا پن، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ ریاستیں، نہ حکومتیں، نہ کوئی فرشتہ مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ قید میں بیٹھا کہاں ہے جی؟ باتیں کتنی خوبصورت کر رہا ہے، کہتا میں خداوند میں قیدی ہوں۔ اب 2 باتوں میں وہ قیدی ہے، خداوند میں بھی قیدی ہے اور روم کی قید میں بھی ہے۔ بار بار کہتا ہے میں مسیح کا اسیر ہوں، مسیح نے مجھے اسیر کر لیا، میں مسیح کا بندہ ہوں، میں مسیح کا غلام ہو گیا ہوں۔ تو یہ غلام ہو جانا، قیدی بننا، یہ اسیر کے لیے، بندے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈولس۔ میرے پیچھے کہیں ڈولس۔ ہم مشکل باتیں سیکھتے رہتے ہیں موبائل میں سے، اپنی ضرورت کی بڑے بڑے مشکل لفظ سیکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کلام کے الفاظ سیکھا کریں، آمین۔
तो बाइबल के अल्फाज नहीं हम सीखते, ये यूनानी में लफ्ज जो बंदा है, खुदा का बंदा है, पालूस कहता है मैं मसीह का बंदा, पालूस जो रसूल होने के लिए बुलाया गया। पहले क्या हूं? मसीह का बंदा हूं। मसीह का बंदा होने का मतलब, मसीह का कैदी होने का मतलब, मसीह का असीर होने का मतलब, मसीह का गुलाम होने का मतलब, यूनानी में इसको कहा गया डूलस। क्या कहा गया जी? डूलस का मतलब क्या है? डूलस का मतलब है ऐसा असीर बंदा जो जर खरीद गुलाम हो। इसीलिए पालूस कहता तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। तो अब वो कहता मैं बंदा हूं फिर रसूल हूं। पहले बंदा हूं फिर क्या हूं? पहले उसका असीर हूं फिर रसूल होने के लिए बुलाया गया हूं। मैं अक्सर कहता हूं इधर लोग सब कुछ बन जाते हैं, बंदे नहीं बनते। बंदे बने पहले। ये मैं पंजाबी में भी कह रहा हूं, आप समझते हैं ना, कहते हैं बंदे बाण, बंदा बाण। हम बंदे नहीं बनते खुदा के, बंदे बनना है पहले खुदा के। डूलस बनना है, गुलाम बनना है, असीर बनना है, फिर खिदमतें शुरू होती हैं। हालेलुया। हम पहले बिशप, डॉक्टर, पास्टर, डीकन, एल्डर, एडवाइजर, क्या क्या बन जाते हैं, बंदे नहीं बनते। पहले क्या बनना है? मसीह के, फिर खिदमतें शुरू, फिर रसूल होने के लिए बुलाया गया। हमेशा हम ओहदे को ऊपर रखते हैं, अपनी खिदमत को नीचे रखते हैं, अपने मसीह के साथ तल्लुक को नीचे रखते हैं, अपने ओहदे को ऊपर रखते हैं। तो नहीं पता मैं तो ऐसा, आप मसीह के बंदे हो सबसे पहले। हालेलुया। कहता है मैं रोम की कैद में हूं, लेकिन मैं किसी और का भी कैदी हूं, और जिसका मैं कैदी हूं वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अव्वल दर्जा मेरी जिंदगी में किसको मिलना चाहिए? अव्वल दर्जा किसको? यीशु मसीह को। कहता है मैं मसीह का कैदी हूं, खुदावंद में कैदी। वो इस बात का कई दफ़ा जिक्र करता है और वो दिखाना चाहता है कि मैं खुदावंद की खातर कैदो बंद से नहीं शर्माता। आज के मसीह को छोटी भी तकलीफ आ जाए ना तो वो कहता है भाई नहीं, बस मैं नहीं चल सकता, मैं खुदा के साथ नहीं चल सकता, मैं कलीसिया के साथ नहीं चल सकता, मैं तुहाडे नाल नहीं चल सकता। क्यों? इसलिए कि मैं अक्सर ये बताता हूँ, वो कहता है मेरी इज्जत नहीं है जी। चर्च में हम इज्जत पाने के लिए नहीं आते, खुदा को इज्जत देने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इज्जत पाने के लिए नहीं आते, एक दूसरे की इज्जत करने के लिए आते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है हर कोई दूसरे को अपने से बेहतर समझे। कभी बीवी ने शौहर को कहा आप मुझसे बेहतर हैं? नहीं, वो कहती है मैं ही बेहतर हाँ, तुसी बेहतर नहीं है गेडे जिड्डी मैं बेहतर हाँ। तो एक दूसरे को कहना सीखें, मसीह तालीम सीखें, आप मुझसे जी, मैं कह सकता हूं आप मुझसे बेहतर हैं। हालेलुया। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रूह कुछ हमें छू लेगा, मसीह की मोहब्बत हमें छू लेगी, एक दूसरे के दिल को हम ताजा कर सकेंगे, मसीह की मोहब्बत से भर जाएंगे। हालेलुया। कहता है मैं शर्माता नहीं हूं मसीह की खातर किसी काम से, किसी तकलीफ से। वो एक बेबस कैदी की हैसियत से दरख्वास्त करता है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, इल्तमास करता हूं। क्या करता हूं? इल्तमास करता हूं। क्या इल्तमास करता है? इन बातों को याद करते हुए जो खुदा ने तुम्हारे लिए की है, मैं तुमसे दिली तौर पर अर्ज करता हूं। क्या अर्ज करता हूं? वो कहता है मेरे लिए बेशक इमदाद ना भेजे, मेरी रिहाई के लिए मैं कैद में हूं, मेरी रिहाई के लिए कोई असर और रसूख इस्तेमाल ना करें, कुछ ना करें, लेकिन कहता है अपने आप को बेहतर मसीही साबित करें। हालेलुया। आज की बेटी देखे उसका बुलावा क्या है? उसका बुलावा क्या टिकटॉक क्वीन बनना है? उसका बुलावा क्या है कि वो फेसबुक पे अपनी तस्वीरें
अपना बदन, अपना आप दूसरों को दिखाए। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप अपने ऊपर पाबंदियां नहीं लगाते, अपने बच्चों को सिखाते नहीं पहले ठीक बातें, फिर उसके नताइज कभी ठीक नहीं हो सकते। जवान बेटियों, सोचो आप किस बुलावे के लिए बुलाई गई हो। जवान बेटो, आप सोचो आप किस बुलावे के लिए बुलाए गए हो। जवान भाइयों, आप सोचो किस बुलावे के लिए बुलाए गए हो। जवान बहनों, आप सोचो किस बुलावे के लिए बुलाए गए हो। जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। देखो तुम्हारा बुलावा क्या है। दुनिया के माफिया का बुलावा कब्जा ग्रुप है, लेकिन आपका बुलावा ये नहीं है। दुनिया समझते हैं उनका बुलावा करप्शन है, झूठ है, फ्रॉड है, लेकिन आपका बुलावा ये नहीं है। आपने अपने बुलावे पर निगाह रखनी है। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, ऐसे पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। ऐसे नेक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला नेक है। अपने बुलावे को देखो, दूसरों की तरफ ना देखो। हम मसीह कहलाते हैं, हमें उसके नाम के मुताबिक होना चाहिए हमारी जिंदगियों को। हमें मसीह की मानद चलना चाहिए। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि रूह के मुआफिक जिंदा है, तो पौलुस गलतियों के खत में कहता है फिर रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए ना। सिर्फ यही तो ना कि हम बड़े रूहानी हैं, बड़ी गैर जुबानी में बोलता हूँ, बहुत रूहानी हो गया हूँ, मैं बड़ी रूहानी हूँ, बड़ी गैर जुबानें बोलती हूँ, मैं तो दुआ भी बड़ी ऊंची करती हूँ। वो मेरे एक दादा सरगोदे से आते थे, वो कहते मैं एक ख़ानदान को जानता हूँ, बड़ी ऊंची ऊंची दुआ कर देने, लड़ाई भी उन्नी ऊंची ऊंची कर देने। फिर कोई काम ठीक करो, कहता जिन्नी ऊंची ऊंची दुआ कर देने उन्नी ऊंची ऊंची लड़ाई भी फिर कर देने। मल्ले वाले को पता चलता लड़ाई होने रही है इस घर च। जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। जब हम उसकी मानद नहीं चलते, मसीह की मानद चलना चाहिए। लिखा उसकी जुबान में कोई छल, मसीह की जुबान में कोई छल, इधर छल ही छल होते हैं। बुरी बातें दूसरों के खिलाफ हम अक्सर बुरी बातें करते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो कलाम कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बुलावे के लायक मसीह की मानद, कलाम कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था, धमकाता नहीं था, डराता नहीं था। आपका म्यार, आपकी जिंदगी, आपका किरदार यह साबित करेगा कि आप किसके बंदे हैं। हालेलुया। आपको मसीह की मानद बनना है। मैं खुदा की बादशाही और जलाल में बुलाया गया है। कहां पर बुलाया गया है? खुदा की बादशाही और खुदा के जलाल में। हमें उसके वारसों की मानद चलना है। हालेलुया। हम कहते हैं हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। कितने कहते हैं? यकीन है? कितनों को यकीन है आसमान की बादशाही के वारिस है ना? फिर चलना भी आसमान की बादशाही के वारसों की तरह है। आसमान की बादशाही के शहरियों की तरह की जिंदगी होनी चाहिए। लिखा तुम में नशा, नाच रंग, बेहुदा काम नहीं होने चाहिए। तुम किस बुलावे से बुलाए गए हो? जब भी इब्लीस आए तुम्हें गुनाह करने के लिए मजबूर करे, जब भी तुम्हारा ध्यान गुनाह की तरफ लगाए, तुम ये सोचना कि तुम जमीन के शहरी नहीं हो, तुम आसमान के शहरी हो। तुम एक आसमानी बादशाह के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें एक बादशाह दी गई है और तुम उस बादशाही के बादशाह हो, उसके कायम भी हो। और उस बादशाही का, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। इसलिए कहता है क्या करो, आगे देखे क्या करो। कहता है कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। कमाल फरोतनी और हिलम के साथ। किस तरह? कमाल फरोतनी
और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। फरोतनी का क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे? हम अक्सर कहते हैं भाई मैं बड़ा फरोतन हाँ, फलां बड़ा फरोतन है। फरोतनी का क्या मतलब है जी? अलीम होना, ठीक हो गया। फरोतनी फ़ख्र के उल्ट है। फ़ख्र के क्या है? यानी फ़ख्र नहीं करता मैं, इनकसार हूँ, हलीम हूँ। लेकिन फरोतनी का आज मैं आपको सादा मतलब बताता हूँ। हिलम या फरोतनी जो है उसका सादा मकसद नाम मतलब क्या है कि मैं कभी दूसरे को नाराज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही खुद कभी आसानी से गुस्से में आता हूँ। जो बंदा बात बात पे गुस्से पे आ जाता है, जो बंदा बात बात में दूसरों को नाराज कर देता है, तो फिर इसका क्या मतलब है? वो क्या नहीं है? क्या नहीं है जी? फरोतन नहीं है। आमीन। फरोतनी क्या करती है? वो बात बात पर गुस्से पे नहीं आता और ना ही दूसरों को नाराज करता है अपनी बातों से। तहम्मुल का क्या मतलब है जी? बर्दाश्त करना, ठीक है जी। और कुछ? आज मैं सादा सादा मतलब बताऊंगा ना, सादा मतलब ज़्यादा अच्छे होते हैं जी। हाँ जी, क्या करना? सब्र करना, बहुत अच्छा। और जी, सब्र भी अच्छी बात है, बर्दाश्त अच्छी बात है, तहम्मुल यही है। लेकिन तहम्मुल की सादा तारीफ बताना चाहता हूँ। सब्र से अपने नुकसान को बर्दाश्त करना, अपने साथ होने वाली ज़्यादती को सब्र से बर्दाश्त करना और इंतकाम नहीं लेना, यह तहम्मुल है। क्या नहीं करना? मसीहों को कहा गया तुम्हारा बदला कौन लेगा? अपना बदला किस पर छोड़ दो। अगर आप बदले लेने पर निकल पड़े तो फिर सारी जिंदगी बदले लेने और देने पर ही गुजर जाएगी, बाकी काम भूल जाएंगे आप। इसलिए कलाम कहता है तुमने तहम्मुल करना है। यीशु मसीह भी तहम्मुल करते थे, लेकिन अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया। हालेलुया। किसके सुपुर्द कर दिया? सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया। तहम्मुल यही है, ये किरदार की वो खूबी है जो सब्र से सारे नुकसान और ज्यादती को बर्दाश्त करती और इंतकाम नहीं लेती। यही तहम्मुल किरदार की खूबी है। हालेलुया। आगे लिखा मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। किससे बर्दाश्त करो? जब मोहब्बत नहीं ना होती फिर बर्दाश्त भी नहीं होती। मियाँ बीवी के दरमियान भी मोहब्बत ना हो फिर बर्दाश्त नहीं होती। मोहब्बत हो फिर बंदा इग्नोर करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुकद्दस अय्यूब में और उसकी बीवी में कितनी मोहब्बत थी। बड़ी सख्त बात कहती है वो फिर भी इग्नोर करता है। लड़न नहीं पै जाता, ये नहीं कहता ठहर जा, जाना किथे। कहती है इस खुदा पर की तकफीर कर। किस खुदा को मानता है? अभी इसकी तकफीर कर दे, छोड़ दे जिसकी इबादत करता है। मोहब्बत करता है ना तो मोहब्बत से क्या करता है? बर्दाश्त करता है। और पता है क्या कहता है कि तू नादान औरतों की सी बातें क्यों करती है? जिसके 10 बच्चे मर गए हों एक दिन में, क्या कहता है? तू नादान औरतों की सी बातें क्यों? यानी तू नादान नहीं है। बड़ी खूबसूरत फिक्रा बंदी है। देखे, ये नहीं कहता तू नादान नहीं है, ये नहीं कहता तू नादान है, कहता है इसका मतलब तू तो अक्लमंद है, तू तो बहुत अच्छी है। तू नादान औरतों की सी बातें क्यों करती है? जिस खुदा के हाथ से सुख पाया दुख ना पाए। अगर दुख आए तो क्या खुदा बदल ले? नहीं। तू नादान औरतों की सी बातें ना कर, ये बातें तो नादान औरतें करती हैं। तू तो अक्लमंद दाना औरत है, खुदा की बंदी है। हालेलुया। साडे वांगू तो पंजाबी हुंदा तो फिर की करदा। अकल सीखनी अब हमें। मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अगर बीवी कोई ऐसी बात करती है बर्दाश्त करे। अगर शौहर बात करता है बीवी को बर्दाश्त करना चाहिए।
اور یہی بات ہے، بہترین مسیحی وہ ہے جو ایک دوسرے کو بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ کلام کی تعلیمات ہیں۔ کلام اس لیے نہیں ہے کہ ایک پادری نے کھڑے ہو کے بھاشن دے دیا، آپ نے بھاشن سنا، چلے گئے، بھاشن بھول گئے، کام ختم ہو گیا، پھر اگلے اتوار آ گئے ہنجی۔ خالی نہیں جانا اچھا نہیں کہ روح علم سے، اب اس روح کو خدا کے علم سے بھرنا ہے، پھر اس زندگی میں خوبصورتی اور نکھار آ جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ بڑی خوبصورت بات یہی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کو کیا بنانا ہے؟ بہترین بنانا ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو پہچاننا ہے اور ان کو بڑھانا ہے، جذبات کی تجدید کرنی ہے، دوسروں کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا۔ ہم اپنے اندر بہت سی باتیں پاتے ہیں جن کے باعث ہم اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو صاف کرنا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے آپ نو اسی صاف نہیں کر سکتے، دوجیاں نو اسی معاف نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ نو صاف کرنا مشکل ہے لوگاں نو، دوجیاں نو معاف کرنا مشکل ہے۔ جب آپ دوسروں کو معاف کر دیں گے آپ اپنے آپ کو صاف کر دیں گے۔ ہیلیلویا۔ جب دوسروں کو کیا کر دیں گے؟ پھر اپنے آپ کو کیا کر دیں گے؟ جب تک دوسروں کو معاف کرنا مشکل ہے اس وقت تک اپنے آپ کو صاف کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ محبت سے ایک دوسرے کی کیا کرو؟ برداشت کرو۔ اگر وہی باتیں دوسروں میں پائی جائیں جن کے لیے ہم ان سے انہیں معاف نہیں کرنا چاہتے اور وہی ہم میں بھی پائی جائیں تو پھر کیا علاج ہونا چاہیے ہمارا بھی؟ کیوں جی؟ تو اس لیے معاف کرنا سب سے اچھی بات ہے۔ ہیلیلویا۔ لکھا محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، محبت جھنجھلاتی نہیں ہے، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، محبت بدی سے خوش نہیں ہوتی۔ یہ ہے مسیح کی محبت۔ ہیلیلویا۔ اور اگر کوئی بدی کرتا جائے کہ میں محبت کر رہا ہوں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ بدی ہے۔ محبت بدی نہیں کرتی، نازیبا کام نہیں کرتی، جھنجھلاتی نہیں، شیخی نہیں مارتی۔ ہیلیلویا۔ کلام کی تعلیمات کو اب ہم نے سیکھنا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو ہمیں معاف کرنا چاہیے، اس کے بغیر روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہ نہیں سکتی۔ اور اگلی آیت میں کہتا اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ کیا ہو جائے؟ بندی رہے۔ تو روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ کلیسیا کو کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو۔ دنیا کے لوگوں نے سیکھ لیا کہ جب وہ عبادت گزار ہیں تو پھر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ آمین۔ سب برابر۔ ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ اور یہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے کا مطلب ہے کہ اس کی طرف پہلا قدم کیا ہے؟ فروتنی ہے۔ کیا ہے؟ فروتنی ہے۔ فخر اور جذبات صلح اور یگانگت کو تباہ کر دیتے۔ کبھی کبھی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جذبات اچھے ہیں لیکن اتنے جذباتی نہ ہو کہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ کوئی غلط فیصلے کر بیٹھے۔ جذبات اچھے ہیں لیکن جذباتی نہ ہو۔ جذباتی ہونا کبھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ روح کی یگانگی قائم رہنی چاہیے۔ اور میں نے کہا یہ جذباتی ہونا اور یہ فخر جو ہے یہ صلح کو یگانگت کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے جتنا حلم جتنی انکساری ہوگی اتنا ہی ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ روح کی یگانگی ہے۔ اور لکھا اس کوشش میں رہو۔ کیا کس میں رہو؟ لوگ وعدے کرتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، کیونکہ وعدے پورے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کلام میں ہمیشہ پالوس نے کیا کہا؟ کوشش کرو، اور ساتھ کا کوشش میں سستی۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بہت سے لوگ وعدے کرتے ہیں پھر نہیں چلتے۔
वो खुदा के साथ चलने का वादा, खुदावंद इस साल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बड़े बड़े वादे लोग करते हैं, आपको भी मालूम है, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूं। कभी कभी हम उन वादों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये सोचें हमने कोशिश करनी है। क्या करनी है? बहुत अच्छा लफ्ज है, कोशिश करो, इसी कोशिश में रहो, और कोशिश में सुस्ती तो ये रूह की ये गानगी सुलह के बंद से फिर कलीसिया के दरमियान, खानदानों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, बाप और बच्चों के दरमियान, माँ बाप और बच्चों के दरमियान झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। घरों से झगड़ों की, लड़ाई की आवाजें नहीं आएंगी, दुआ की आवाजें आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लान तान की आवाजें नहीं आएंगी, एक दूसरे को बरकत देने की आवाजें आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंद से। इसका क्या मतलब है? कि सुलह एक बंद है। सुलह क्या है? एक बंद है जो बहुत ही नरम नरम पतली पतली डोरियों को बंद से इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर वो बंद जो उन्हें इकट्ठा रखता है, मजबूत बनाता है। ये मोहब्बत का बंद है जो कलीसिया के दरमियान होना चाहिए, खानदानों के दरमियान पौलुस कहता होना चाहिए। हालेलुया। लकड़ियों के गट्ठे को आप इत्तेहाद की बरकत, इत्तेफाक में बरकत पढ़ते आए हैं बचपन से। अगर लकड़ियों के गट्ठे को लैदा लैदा कर दिया जाए, लकड़ियां आसानी से टूट सकती हैं। जब उनको बांध दिया जाए इकट्ठा टाइट, फिर आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। यही हाल खानदानों का है, कलीसिया का होना चाहिए, माँ बाप और बच्चों का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। रूह की यगानगी सुलह के बंद से बंधी रहे। बरकतें कभी आपके खानदान, आपके घराने, आपके बच्चों, आपकी नस्लों पर से कभी बरकतें खत्म नहीं होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया के नारे कभी आपके घर से खत्म नहीं होंगे। आसमानी शादमानी कभी आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होगी। फिर वो काबां दी मानत तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नू, आपकी जवानी नहीं होती रहेगी। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता रहेगा। वो तेरा खुदावंद तुझसे प्यार करता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगना शुरू करें। दुआ मांगना शुरू करें, मिलकर दुआ करेंगे। मिलकर दुआ करेंगे कुछ देर के लिए। आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे, रिलेशन कायम करें। कोई फायदा नहीं, वरना अगर आपका रिश्ता कायम नहीं होता यीशु से, अगर आज तक कायम नहीं हुआ, तो उन इबादतों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका उसके साथ रिश्ता नहीं कायम हुआ, तो आपकी दुआएं भी नहीं सुनी गई आज तक। लेकिन आज उससे कहें, मैं तेरी हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरे साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहता हूं, चाहती हूं। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। सिर्फ ये दुआ करें, खुदा मैं आज अपनी जिंदगी नए तौर पर तुझे देती हूँ, देता हूँ। मैं अपना आप तेरे हवाले करती हूँ। चाहे आप बेटा है, चाहे आप बेटी हैं, और चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप भाई हैं, चाहे बहन हैं, तेरे हवाले करता हूँ। ओ शादारा ज़ालारा खबरसी, मेरी जिंदगी पर तू हुक्मरानी कर यीशु। मेरे रूह बदन जान पर फेसबुक, यूट्यूब हुक्मरानी ना करे, सोचों पर तेरा ख्यालों पर खुदावंद, सोशल मीडिया हुक्मरानी ना करे, राज हो। अब्लीस और बदरुआ हुक्मरानी ना करे, अब्लीस हुक्मरान ना हो मेरी जिंदगी का। तू मेरी जिंदगी का हुक्मरान बन। आज से मैं सच्चे दिल से तुझे अपनी जिंदगी को हुक्मरानी देती। मैं दुनिया की बातों, ख्यालों, कामों से ओ खुदावंद कदूस खुदा मरगूब ना हूँ, बल्कि खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद अपनी जिंदगी बसर करने वाली बन जाऊं। मैं तुझे जलाल देने वाला, जलाल देने वाली बन जाऊं।
मैं तेरी लायक बेटी, तेरा लायक बेटा बन जाऊं। और कि जितनी कलाम की बातें खुदावंद कदूस खुदा तेरा बंदा तेरा खादिम ने आज शेयर की, हम तक पहुंचाई खुदावंद कदूस खुदा। खुदावंद इस कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने का फजल बख्श दे। और खुदावंद कदूस खुदा हमारे ख्यालों को, हमारे दिलों को छू लीजिए, हमारी रूहों में खुदावंद कदूस खुदा तेरा कलाम रच बस जाए। ओ खुदावंद कदूस खुदा, तू जो खुदावंद हमारे नजदीक है, ओ शोलारा ज़बरासी हमारी सोचों को, हमारे दिलों को, हमारी रूहों को छू लीजिए, ताकि खुदावंद कदूस खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो। और हमारी जिंदगियों से गवाही पैदा हो। खुदावंद कदूस खुदा हम तुझे जलाल देने का आज सारे नबी को यीशु के नाम में छिड़के हर तरह के ख्यालों को जो तेरे कलाम के मुनाफी है, तेरे कलाम के बरखिलाफ है, तेरे कलाम के खिलाफ सर उठाए हुए हैं, उन ख्यालों को, उन सोचों को, उन खौफ की बदरुओं को आज यीशु के नाम से अपनी जिंदगियों से रद्द करने वाले बन जाए और उन्हें तेरे सलीब के सामने रखने वाले माफी का रूह बख्श दे। रहम कर रहे हैं, तुम पर रहम होगा। माफ करो, तुम माफ किए जाओगे। बरकत चाहो, तुम पर बरकत आएगी। हमारे मुंह से बरकत के अल्फाज आइए अपने घरानों के लिए बहाली मांगे। साल 2021 बहाली का साल है। बहाली मांगे अपने खानदानों के लिए, घरानों के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, खुदा के साथ तलब के लिए बहाली मांगे। जब आपका खानदान खुदा के साथ बहाल हो जाएगा, बरकतें जारी हो जाएंगी। पुकारिए पुकारिए यीशु नाम जो सब से आला है। अपनी जिंदगी उस नाम से हवाले करें। और जितने बीमार हैं की कुदरत को अपनी जिंदगी में हम मिलकर दुआ करेंगे। मैं खुदा उनका खादिम और खुदा उनकी खादमा हम मिलकर दुआ करना चाहते हैं। जितने बीमार हैं या आपकी कोई दरखास्त है उसके लिए अपने सर पर अपना हाथ रख ले यीशु मसीह के नाम में। खुदा इन बीमारियों को, यीशु के नाम से, इन लानतों को, इन इब्लीसी तासीरों को, इन नेगेटिव्स को, शक की हर एक तासीर को, खौफ की हर एक तासीर को, यीशु के नाम से, हर एक लानत को, यीशु के नाम से, हर एक छत उठने की तासीर को, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं और शमला रासा कबरासी बांधते हैं यीशु के नाम में। और खुदा कदूस खुदा इन जिंदगियों की बहाली, रिहाई, आजादी का ऐलान करते हैं और तेरे लहू की धारा को मांगते हैं। खुदा जितनों ने अभी तक तौबा करके गहरे पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, मैं दुआ करता हूँ आज जब वो अपनी जिंदगी तुझे दे रहे हैं, इस फैसले पर कायम रहें और जल्द पानी का बपतिस्मा लेकर गहरे पानी में बाप बेटे रूल कुदस के नाम में खुदाम अपनी जिंदगी तेरे हवाले करते हुए तेरे साथ अपना पक्का रिलेशन कायम कर ले, निजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदा मैं इनके कारोबार के लिए, इनके खानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ। हर एक बीमारी को, हर एक रोग को, हर एक लानत को यीशु के नाम से झिड़कते हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।